Hello everyone, I am Shambhavi from Progressive Education and today we gonna take up with a new topic from class 9 Social Science Democratic Politics, that is chapter 2 Constitutional Design. So let's get started. First of all, let's take an overview to understand that what you have learned in your part 1. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution. As the supreme law of the country, the constitution determines the right of the citizens, the power of the government and how the government should function. जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जितने भी जो रूलर्स होते हैं डेमोक्रेसी में वो फ्री नहीं होते कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को ही फॉलो करने पड़ते हैं और ऐसे ही कुछ रूल्स एक साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करते हैं। ओके, So, in this chapter, we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. Why do we need a constitution? How are the constitution drawn up? Who designed them and in what way? And what are the values that shape the constitution in a democratic states? Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions? So these are some basic questions that we have to discuss in this chapter, that is constitutional design. One recent instance of designing constitution of a democratic state is that of South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. As you all have discussed about your part 1 democratic constitution in South Africa, जैसे कि आपने अपने पार्ट 1 में देखा था कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले थे और उन्होंने ये एक अपना एक आइडियल बना लिया था कि उन्हें वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करनी थी। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में जो वाइट डोमिनेशन वाले लोग थे वो ब्लैक डोमिनेशन को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। सो नेल्सन मंडेला का ये आइडियल था कि वो ब्लैक डोमिनेशन को उनकी अपॉर्चुनिटी, उनके राइट्स सब दिलवाएं, बिकॉज द वाइट डोमिनेशन आर treating the black domination very badly. So Nelson Mandela said that he fought against the white domination and he fought against the black domination. That means he fought against the white domination for the black domination. And he said that it is an ideal which he hoped to live and fought to achieve. So that's why he being tried for the treason by the white South African government, but he and his 7 other leaders were sentenced to the life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in the South Africa's most dreaded prison, Robben Island. सो नेल्सन मंडेला ने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट लड़ाई की और उन्होंने जो अफ्रीका की गवर्नमेंट थी उनसे भी कहा, वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी उनसे भी स्ट्रगल किया, उनसे भी कहा, बट उन्होंने उनके जो 7 और लीडर्स थे नेल्सन मंडेला के, उन सब को एक बहुत ही ड्रेटेड प्रिजन में डाल दिया, दैट इज़ रॉबन आइलैंड। और साउथ अफ्रीका की जो वाइट डोमिनेशन वाले लोग थे उन्होंने एक साइन बोर्ड लगा दिया था, दैट डेंजर नेटिव्स एंड इंडियंस एंड कलर्ड्स, इफ यू एंटर दीज प्रेमिसेस एट नाइट you will be listed as missing. Armed guard shoots on sight. See which doses they were the corrupts and you have been warned. And this signboard emblematic of the tense relation of the apartheid era 1953. जैसा कि आप जानते हैं अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, जो कि ब्लैक डोमिनेशन के लिए वो लोग जो बुरी तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहे थे, उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, जितने भी कलर्ड लोग थे।
सो वाइट डोमिनेशन वाले लोग जो थे वो बहुत ही बुरी तरीके से ब्लैक डोमिनेशन के साथ ट्रीट कर रहे थे जस्ट बिकॉज दे आर ब्लैक्स. सो दिस इज apartheid सिस्टम. दैट मीन्स apartheid was named of a system of racial discrimination unique to the South Africa, and the white Europeans imposed this system on the South Africa. Okay, and during the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and forces. So this is the apartheid system जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने जिसके अगेंस्ट में लड़ाई की थी just because they wanted to realize every South Africans that it doesn't mean that they are blacks. They have to be, that they have all the rights that the white have. उन्हें सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे राइट्स मिलने चाहिए. उनका ये कोई रीज़न नहीं है कि वो ब्लैक्स हैं तो उन्हें कोई भी राइट्स या कोई भी और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी. सो दैट्स द रीज़न दैट द नेल्सन मंडेला वॉज फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन. ओके, सो अब जो ब्लैक डोमिनेशन वाले लोग थे उन्होंने इसके अगेंस्ट लड़ाई की. उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए. उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था. जहाँ पर वाइट डोमिनेशन वाले लोग रहते थे वहाँ पर ब्लैक डोमिनेशन वाले लोग आ नहीं सकते थे, अपने कुछ बातें उनसे कह नहीं सकते थे. दैट्स वाई द ब्लैक डोमिनेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन. सो उन्होंने उनके अगेंस्ट बहुत लड़ाई की एंड एट द लास्ट दे कैन रिलीव. मीन्स लास्ट में ये डिसाइडेड हुआ, वाइट डोमिनेशन वाले लोगों को लगा कि नहीं, हमें ब्लैक डोमिनेशन के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा. मीन्स उन्हें हेल्पफुल बनाना पड़ेगा. दैट्स वाई दैट दे गेट रिलीफ. उन्हें सारे राइट्स मिले, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे ये जो लड़ाई हो रही है वो रुक सके. सो उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया. ओके, जो कि 2 years में डिज़ाइंड हो गया. और उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोगों को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिसमें ब्लैक्स को जो अपॉर्चुनिटी थी वही सेम वाइट्स को मिली और जो वाइट्स को थी वही सेम ब्लैक्स को मिली. ओके, दैट मीन्स एवरी सिटीजन्स ऑफ साउथ अफ्रीका कैन गेट इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. That is the reason that an undemocratic country become a model of a democratic country due to the constitution. Okay, now I hope that you all understand that what we have learned in our part 1. Now come to the part 2, that is our first topic, why do we need a constitution, कि हमें constitution की ज़रूरत क्यों पड़ी. The South Africans example is a good way to understand that why we need a constitution and what do the constitution do. जो साउथ अफ्रीकन का हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया, आई होप कि वो गुड वे था ये समझने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है. ओके, The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. So अब जो oppressors थे और जो oppressed वाले लोग थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो एक साथ रहेंगे अपने ये न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री में. ओके, that means they live together with the equal rights and equal opportunities. But it was not going to be easy for them to trust each other. उनके लिए आसान नहीं था कि वो एक बार में एक दूसरे पर इतनी आसानी से ट्रस्ट कर सकें. They had their fears. उन्हें कुछ बातों का डर भी था. They wanted to safeguard their interest. वो अपने इंटरेस्ट को सेव करना चाहते थे. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of the majority rules was not compromised. सो जो ब्लैक मेजॉरिटी वाले लोग थे वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं मेजॉरिटी रूल के वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. उन्हें सब्सटेंशियल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहिए थे. द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी. और जो वाइट माइनॉरिटी वाले लोग थे वो अपने प्रिविलेजेस और अपने प्रॉपर्टी को सेव करना चाहते थे. मीन्स वो अपनी प्रॉपर्टी ब्लैक्स को नहीं देना चाहते थे. ओके, एंड आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्री टू कॉम्प्रोमाइज. और बहुत ही लंबे नेगोशिएशन के बाद दोनों ही पार्टी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एग्री कर गई.
And the white agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. और जो वाइट्स थे वो एग्री कर गए इस प्रिंसिपल से कि जो मेजॉरिटी रूल होगा दैट मीन्स वन पर्सन वन वोट, कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, हर पर्सन का एक ही वोट होगा, मीन्स वन पर्सन वन वोट, हर एक पर्सन एक ही वोट देगा और उसकी एक ही वैल्यू होगी. ओके. And they also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. और कुछ वो बेसिक राइट्स जो थे जो कि पुअर्स और वर्कर्स के होने चाहिए उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया. The blacks agreed that the majority rule would not be absolute. और जो ब्लैक्स थे वो एग्री कर गए कि जो मेजॉरिटी रूल होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा. They agreed that the majority would not take away the property of white minority. और वो इस बात से एग्री कर गए कि जो मेजॉरिटी वाले रूल मीन्स जो मेजॉरिटी वाले लोग होंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो वाइट माइनॉरिटी वाले लोग थे वो कम थे, बट जो ब्लैक माइनॉरिटी वाले लोग थे वो ज़्यादा थे मेजॉरिटी में. सो यही सेम ब्लैक माइनॉरिटी कहना चाहती है दैट दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी. सो जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे. And as you all know that this compromise was not easy for them. How was this compromise going to be implemented even if they managed to trust each other? What was the guarantee that this trust will not be broken in future? उन्हें इस बात का ये डर था कि अगर वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लें, अगर वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर भी लें, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनका ये ट्रस्ट फ्यूचर में ब्रोकन आउट नहीं होगा. इसीलिए उनका जो ये कॉम्प्रोमाइज़ था वो उनके लिए ईजी नहीं था. ओके. That's why the only way to build and maintain the trust in such a situations is to write down some rules of the game that everyone would abide by. So, उनकी ये जो ट्रस्ट है उसको मेंटेन करने के लिए इस सिचुएशन में, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी गेम हो तो उसके पैकेज के पीछे उनके कुछ रूल्स लिखे होते हैं कि इस गेम के क्या रूल्स हैं. उसी तरीके से साउथ अफ्रीका वाले लोग चाहते थे कि कुछ ऐसे रूल्स मेंटेन हो जो कि जितने भी लोग हैं साउथ अफ्रीका के वो सब इसको फॉलो करें, जिससे फ्यूचर में उनका कभी ये ट्रस्ट ब्रोकन आउट नहीं हो. ओके. So these rules lay down how the rulers are to be chosen in futures. So ये जो कुछ रूल्स थे वो ये ले डाउन करेंगे कि जो रूलर्स हैं वो कैसे फ्यूचर में चोजन आउट होंगे. These rules are also determine that what the elected government are empowered to do and what they could not do. और ये जो कुछ रूल्स होंगे वो ये भी दैट मीन्स ये भी डिटरमाइन करेंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके पास क्या पावर है कि वो ये कर सकती हैं और क्या पावर है कि वो ये नहीं कर सकती हैं. दैट मीन्स दे ऑल्सो रिटन दैट व्हाट हैव द पावर्स ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड व्हाट डज नॉट हैव देयर पावर. ओके. दैट मीन्स व्हाट दे डू दैट व्हाट कैन दे नॉट डू. So finally, these rules decide the rights of the citizens. So finally ये जो rules थे वो सब जितने भी citizens हैं उनके right को decide कर रहे थे. So these rules will work only if the winners cannot change them very easily. So ये rules तब तक work करेंगे जब तक जो winners हैं वो इन्हें बहुत ही आसानी से change नहीं कर देते. So this is what the South Africans did. सो ऐसा ही कुछ साउथ अफ्रीका वाले लोगों ने किया. सो दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स. दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दीज. सो उन्होंने कुछ ऐसे ही बेसिक रूल्स पे एग्री किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रूल्स होंगे मीन्स जितने भी रूल्स उन्होंने लिखे हैं ये सब सुप्रीम होंगे, कोई भी गवर्नमेंट इसे इग्नोर नहीं कर सकती. This set of basic rules is called constitution. ये जो सेट है कुछ बेसिक रूल्स का, this is together called a constitution. Now, constitution making is not unique to South Africa. Country has diverse groups of the peoples. So,
एज यू ऑल नो, जो कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका का, वो यूनिक नहीं था कि पूरे साउथ अफ्रीका का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बहुत ही यूनिक है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग कंट्री जो है बहुत ही डाइवर्स ग्रुप होते हैं, मींस अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। You know, their relationships may not have been as bad as that between the whites and the blacks in South Africa. मे भी ऐसा हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप्स इतने बुरे ना हो जैसे कि साउथ अफ्रीका में वाइट्स और ब्लैक्स के थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। बट यू नो, इस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है और अलग अलग इंटरेस्ट है। Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. चाहे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो चाहे ना डेमोक्रेटिक हो, उन्हें ये कुछ बेसिक रूल्स चाहिए होते हैं एक दूसरे पर ट्रस्ट करने के लिए। सो दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स, मीन्स ये जो बेसिक रूल्स हैं ये खाली गवर्नमेंट पे अप्लाई नहीं होंगे, ना ही खाली सिटीजन्स पे अप्लाई होंगे। ये जो इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन्स हैं, अलग अलग कंट्री के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे रूल्स अपनी अपनी कंट्री पे उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। एनी एसोसिएशंस नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एसोसिएशन हो उसे अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही होता है। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कॉर्पोरेट सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे क्लब हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सबको अपना कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी, इफ़ यू ऑल वांटेड सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। Approach a club or a cooperative society or a union or political party in your locality. Get a copy of their rule book. It is often called Rules of Association and read it. मीन्स जो क्लब या कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी, इन सब के जो रूल्स होते हैं जो कि एक तरीके से एक साथ रहते, मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, जैसे कि उनके जो रूल्स होते हैं वो जो एक साथ अपने रूल्स जो भी लिखे रहते हैं, उन सब को अगर आपको मिल सके तो उन्हें एक बार पढ़ के देखिए। आर दीज रूल्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी? क्या ये जो रूल्स हैं वो जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं डेमोक्रेसी के उसी तरीके से हैं? ऑल दीज गिव मेंबरशिप ऑफ एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? क्या ये सब मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक पर्सन को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के? सो इफ़ यू ऑल वांटेड सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ओके, thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all peoples living together in a country. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है अलग अलग कंट्री का, ये एक सेट है रिटन रूल्स का, जो कि हर लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हर किसी पीपल ने उसे एक्सेप्ट किया है। ओके, जिससे वो सभी एक साथ रह सके, भले ही उनके अंदर जो भी ओपिनियंस का डिफरेंस है या उनके अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, बट दे लिव टुगेदर जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री। Constitution is the supreme law that determines the relationship among peoples living in a territory called citizens, also the relationship between the peoples and the government. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है खाली लोगों में ही उनका रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं करता है, ये गवर्नमेंट और पीपल के भी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। एक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो कि हर गवर्नमेंट, हर कंट्री के जितने भी लोग हैं उन सबको फॉलो करनी रहती हैं। और कुछ ऐसी भी बात होती है जो कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती और जो लोग नहीं कर सकते। ओके, दे ऑल हैव लिमिटेड राइट्स एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। नाउ लेट्स सी ऑल दीज पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड Constitution in more detail. First, it generates a degree of a trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. ये एक डिग्री को जनरेट करता है, दैट मीन्स एक ट्रस्ट, यू नो दैट इट जनरेट्स अ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ये ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को जनरेट करता है इसलिए कि अलग अलग तरीके के लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रह पाएँ।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनके बीच में जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे और वो सभी एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रह पाएँ, चाहे उनके अंदर जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो। Second point is that it specifies how the government will be constituted. That means कि कैसे गवर्नमेंट कैसे होगी, कैसे वो फंक्शन करेगी, उनकी क्या पावर होगी, उनकी क्या डिसीजंस हो सकते हैं. Who will have power to take which decisions. Means किसके पास कौन सी पावर है कि वो ये डिसीजन ले सकता है और किसके पास पावर नहीं है कि वो डिसीजंस नहीं ले सकता. ओके. Now third point, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the right of the citizens are. ये ले डाउन करता है पावर की जो दैट मीन्स जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उन्हें लिमिटेड करता है और हमें हमारे राइट्स को बताता है. ओके. Now fourth point, it expresses the appreciations of the people about creating a good society. ये एक्सप्रेस करता है एक एस्पायरेशन को लोगों के, जो कि एक गुड सोसाइटी बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक. ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो कि यू नो दैट दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर नेसेसरली डेमोक्रेटिक. मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि जितनी भी कंट्री है अगर उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो बट वो डेमोक्रेटिक भी हों. बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जितनी भी कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक हैं उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ही ज़रूरी है. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. सो वॉर और इंडिपेंडेंस के बाद जो कि ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट अमेरिकन वाले लोगों ने किया था, जब उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई सो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया. जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया तो फ्रेंच वाले लोगों ने भी अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया. एंड सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये यू नो दैट ये नॉर्मल सी प्रैक्टिस की तरह हो गया था कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उन सबको अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए. ओके. सो देयर इज अ कार्टून that this is not fair. What the point is having a constituent assembly in India if all the bases were already decided. So ये एक small boy है जो ये कहना चाहता है. If you want it, so you can read it. Okay, it's a normal cartoon. सो अभी तक हमने बेसिकली बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट के बारे में, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. Now, as like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. So जैसे कि साउथ अफ्रीका वाले लोगों के साथ हुआ था, वैसे ही इंडिया के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही आसान नहीं था. उनका भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस के अंदर बना था. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. सो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतनी बड़ी ह्यूज और डाइवर्स कंट्री का जैसे कि इंडिया है वो बहुत ही ईजी नहीं था. एज दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ द सिटीजन्स. सो उस टाइम पर जो लोग थे इंडिया के, दे वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ द citizens. So the country was born through a partition on the basis of religious differences. So जो ये कंट्री थी इंडिया, वो कैसे बनी थी? थ्रू द पार्टीशन ऑफ बेसिस रिलीजन डिफरेंसेस. मीन्स बहुत ही ज़्यादा उसमें डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ही डिफरेंसेस था अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. Now this was a traumatic experience for the people of India and the Pakistan. So ये जो था एक बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस था जो कि लोग थे इंडिया और पाकिस्तान उनके लिए. सो यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस. सो ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस मीन्स दर्दनाक अनुभव.
ये बहुत ही दर्दनाक अनुभव था पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए. So, at least 10 lakh people were killed on both the sides of the border in the partition related violence. 10 लाख लोग जो थे वो किल्ड हो गए थे ये जो पार्टीशन हुआ था at the related violence. There was another problem. The British had left it to the rulers of princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan. जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो अपने रूलर्स थे उन्हें ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स उन्हें छोड़ दिया था. उनसे कह दिया था या तो वो इंडिया के साथ दैट वांटेड टू मर्ज विद इंडिया, या तो वो इंडिया के साथ मर्ज करें और या तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज करें और रिमेन इंडिपेंडेंट, और या तो वो इंडिपेंडेंट रहें. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. और ये जो मर्ज प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की ये बहुत ही डिफिकल्ट और अनसर्टेन टास्क थी. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. दैट मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिज़ाइन हो रहा था तो हमारी कंट्री को जो फ्यूचर है हमारा वो सिक्योर नहीं दिख रहा था जैसे कि अभी है. So the makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो बहुत ही एनेक्सीड्स थे. एनेक्सीड्स मीन्स चिंता में थे अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री के आज के लिए और हमारी कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे. दैट दे आर इन एनेक्सीड्स. Now there is an activity if you wanted so you can perform this activity. Speak to your grandparents or some other elders in your locality. Ask them if they have any memory of partition or independence or the making of the constitution. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने कुछ एल्डर्स से अपनी लोकेलिटी में कहिए कि वो आप अगर उन्हें कुछ पता हो कोई मेमोरी हो जब ये पार्टीशन और इंडिपेंडेंस हो रहा था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उनके बारे में आपको कुछ बताएं. what were their fears and hopes about the country at that time? उनका क्या डर था, उनकी क्या आशा थी उस टाइम पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हो रहा था. डिस्कस दीज इन द क्लासरूम. और इस सब बातों को अपने क्लासरूम में डिस्कस कीजिए. ओके, दिस इज़ एन एक्टिविटी इफ़ यू ऑल वांटेड सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी. Now there are some pictures of some great man which you all have to look at it. Okay. Now this is the picture of Vallabhbhai Jawaharlal Patel. Okay. He born at 1875 to 1950. Gujarat Minister of Home, Information and Broadcasting in the Interior Government, lawyer and the leader of Bardoli Peasant Satyagraha, played a decisive role in the integration of Indian princely states, later Deputy Prime Minister. This all about this great man. If you all wanted, so you all can find out about him more. Okay, अगर आप चाहते हैं तो इनके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. और Now there is another picture of Abdul Kalam Azad, 1888 to 1958, born in Saudi Arabia, educationist, author and theologian, scholar of Arabic, Congress leader, active in the national movement, opposed Muslim separatist politics, later education minister in the first union cabinet. Okay, this all about this great man Abdul Kalam Azad. Now there is another picture of T.T. Krishnamachari at 1899 to 1974, born at Tamil Nadu, member drafting committee, entrepreneur and Congress leader, later finance minister in the union cabinet. Okay, this is T.T. Krishnamachari. Now come to the next topic, that is the path to constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian constitution. इन सारी डिफ़िकल्टीज़ के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what the democratic India should look like.
Much of these consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. उनका ये एडवांटेज था कि साउथ अफ्रीका की तरह उन्हें अपना कोई भी कॉन्सेंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी. एट दी व्हाट्स द डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, मीन्स कैसा हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया रहेगा. मच ऑफ दीज कंसेंसस, मैं मतलब कुछ इसी कंसेंसस की तरह, दैट मीन्स ऐसे ही कुछ कंसेंसस जो थे जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तभी ये सारे कंसेंसस आए थे. सो अवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल. सो हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो मेयरली एक स्ट्रगल था. यू नो दैट एक स्ट्रगल नहीं था अगेंस्ट अ फॉरेन रूल. You can say that our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to the rejuvenate over our country and to transform our society and politics. That means it was also a struggle. मीन्स ये खाली हमारे फॉरेन रूल के अगेंस्ट ही कोई स्ट्रगल नहीं था, ये और भी स्ट्रगल था. रेविजनेट, दैट मीन्स अवर कंट्री, टू ट्रांसफॉर्म अवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. सो there were a sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path and India should take after the independence. So कई सारे differences थे, you know that there was a sharp differences. उनके जो ओपिनियन थे वो अलग थे विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड अबाउट द पाथ ऑफ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हो रहा था तब की ये बात हो रही है. सो सच डिफरेंसेस एक्सिस्ट्स इवन टुडे, और ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस आज भी हैं. येट सम बेसिक आइडियाज हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. ऐसे ही कुछ बेसिक आइडियाज़ जो हैं वो एक्सेप्ट किए गए हैं ऑलमोस्ट सभी के द्वारा. मीन्स सभी लोगों ने ऐसे ही कुछ बेसिक रूल्स को एक्सेप्ट किया है. ओके. Now, as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. सो अगर हम पहले देखें तो 1928 में जो मोतीलाल नेहरू थे और उनके 8 अदर कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प की थी. In 1931, the resolution at Karachi session of India National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. सो 1931 में जो ये रिजोल्यूशन था कराची सेशन में एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ड्वेल्ट हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया, मीन्स उन्होंने ये बताया कि कैसे जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से रहेगा. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. सो ये जो दोनों इंक्लूजन था, दैट मीन्स ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स जो कमिटेड हुए थे मीन्स एक साथ मिक्स हुए थे टू द इंक्लूजन. इंक्लूजन मीन्स समावेश ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, right to freedom and equality, and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. Now, thus some basic values were accepted by all leaders. सो ऐसे ही कुछ बेसिक वैल्यूज़ जो थी वो सभी लीडर्स ने एक्सेप्ट की. मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डिलाइब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो मिली विद द डिलाइब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ the familiarities with the political institution of colonial rules also helped develop an agreement over the institutional design. So the British rule had given voting right only a few. On that basis, the British had introduced very weak legislature. सो जब ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जैसे कि आप जानते हैं उन्हें एक इंडियन के जो मेकर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उन्हें एक आइडिया मिल चुका था कि उन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन करना है. सबसे पहली बात तो थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. जैसे कि आप जानते हैं जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी, उन्होंने सबको वोट करने का अधिकार नहीं दिया था.
मीन्स हर कोई वोट नहीं कर सकता था। जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है, वही लोग वोट कर सकते थे। और जो पुअर्स लोग हैं और जो बाकी लोग हैं वो सब वोट नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनका जो लेजिस्लेचर था बहुत ही वीक था। दैट्स वाई जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उनके मेकर्स ने ये लिखा दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स राइट टू वोट। हर सिटीजन्स को वोट करने का अधिकार होगा। Now, elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministers all over British India. सो जो इलेक्शंस हुआ वो 1937 में जो इलेक्शन हेल्ड हुआ टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। नाउ दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, लेकिन ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। But the experience gained by the Indians in working of the legislative institution proved to very useful for the country in setting up its own institution. So, लेकिन जो ये उनका जो एक्सपीरियंस था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियंस ने जो एक्सपीरियंस गेन किया था, सो उनका जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन बनाने में उन्हें बहुत ही हेल्पफुल हुआ फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम। Now that is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure from colonial laws like the Government of Indian Act 1935. सो इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स अडॉप्ट किए एंड द प्रोसीजर फ्रॉम colonial लॉज, जैसे कि जो गवर्नमेंट एक्ट हुआ था इन 1935. Now, years of thinking and deliberation of the framework of the Constitution had another benefit. So, ये जो thinking और ये जो deliberation हो रहा था for the framework of Constitution, ये एक दूसरा benefit था. Our leaders gained confidence to learn from other countries. हमारे जो leaders थे उन्हें confidence हो गया था, उन्होंने बहुत कुछ बाकी countries से सीखा था. But on our own terms. उन्होंने बहुत कुछ तो सीखा बाकी कंट्रीज से, लेकिन उन्होंने अपने टर्म में उन सबको सीखा। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. हमारे कई लीडर्स ऐसे थे जो कि ये जो आइडियल था हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन का, उससे उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। The practice of the parliamentary democracy in the Britain and the Bill of Rights in the US. So ये जो प्रैक्टिस हुई थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ब्रिटेन में एंड द बिल ऑफ राइट इन यूएस, जैसे कि आपने अपने हिस्ट्री पार्ट में देखा होगा, द फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। सो उसी फ्रेंच रिवोल्यूशन में जितनी भी बातें हुई, जितना भी स्ट्रगल हुआ, उन सब से हमारे जो लीडर्स थे इंस्पायर हुए। जो ब्रिटेन में जैसे कि जो बिल ऑफ राइट्स हुआ यूएस में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में, इन सब से जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने एक तरीके से उसे अपने टर्म्स में नोटेड डाउन किया। ओके, Now the socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on a social and economic equality. So जो हमारा सोशलिस्ट रिवोल्यूशन था रशिया में, उन्होंने भी इंस्पायर्ड किया हमारे इंडियंस को, मीन्स इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड किया टू थिंक ऑफ शेपिंग, मीन्स कैसे हमारे सिस्टम को जो हमारे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के अकॉर्डिंग है उसे कैसे शेप करें। Yet they were not simply imitating that what others had done. मीन्स लेकिन अभी भी वो सब वैसे ही सिंपली वो नहीं कर रहे थे जैसे कि बाकी लोगों ने किया था। उन्होंने ये सब सारी चीज़ें अपने अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग, अपने मेंटालिटी के अकॉर्डिंग सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नोटेड डाउन किया था। At each step they were questioning whether these things suited our country or not. हर एक स्टेप पे वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे थे क्या जो हम लिख रहे हैं वो हमारी कंट्री को सूट करेगा या नहीं, मीन्स दैट इज गुड फॉर अवर कंट्री और नॉट। ओके, सो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो यही कुछ फैक्टर्स थे जो कि कंट्रीब्यूटेड किए गए थे ऑन द मेकिंग ऑफ अवर
कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया बहुत ही ह्यूज और डाइवर्स कंट्री थी। वहाँ पर अलग अलग रीजन के लोग थे, अलग अलग उनका ओपिनियन था, अलग अलग इंटरेस्ट थे। सो उनके बेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। सो बेसिकली कुछ कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हो चुके थे, सो उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उनसे इंस्पायर्ड होके, और जो ब्रिटिश ने किया था, जैसे कि उन्होंने वोट टू राइट करने का अधिकार नहीं दिया था, मीन्स वोट करने का, जिसकी वजह से उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी बहुत ही वीक थी। उससे इंस्पायर होके कई सारी, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होके, इन सब से इंस्पायर होके हमारी जो कंट्री है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, उन्होंने अपने टर्म्स में कई सारे ऐसे फैक्टर्स, मीन्स कई सारे ऐसे रूल्स लिखे जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। वो हर एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले अपने आप से पूछ रहे थे, क्या ये लिखना सही है, मीन्स क्या ये जो रूल्स हम लिख रहे हैं, क्या ये हमारी कंट्री के लिए सही है। सो ऑल दिस अबाउट दैट हाउ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Now, who then were the makers of the Indian Constitution? उस समय कौन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर्स? Who will, you know that you will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. अब मैं आपको कुछ एक ब्रीफ स्केच बताऊंगी, दैट मीन्स अभी आप इस चैप्टर में कुछ लोगों का स्केच देखेंगे, कुछ ऐसे लीडर्स का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एक्टिविटी, find out more about any members of the Constituent Assembly from your state or region who is not mentioned here. Collect a photographs or make a sketch of the leaders. Write a short note on him or her following the same style as used here. Name year of birth, years of death, and place of birth by current political boundaries, and brief description of political activities role played after the Constituent Assembly. सो इफ़ यू वांटेड, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी, कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के बारे में आप स्केच बनाइए, ब्रीफली उनके बारे में लिखिए, उन्होंने कब बर्थ लिया, कब उनकी डेथ हुई, उन सब के बारे में यू नो दैट यू कैन राइट देम अबाउट इन ब्रीफली। ओके, उन्होंने क्या किया। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी, इफ़ यू वांटेड सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। ओके, नाउ the drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives. So ये जो drafting हुआ, that means ये जो drafting of documents था, ये क्या था, Constitution था, जो कि was done by an assembly of elected representatives. means जो elected representative थे उन्होंने ये सब कुछ किया था। ओके, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। मीन्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दैट द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Now the elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. सो ये जो इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कब हेल्ड हुए, एट जुलाई 1946। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। उनकी जो ये पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, एट 1946। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और जल्द ही हमारी जो कंट्री थी, जो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले इंडिया और पाकिस्तान एक साथ था, नाउ अब जो ये कंट्री है डिवाइड हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान में। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइड हो चुकी थी इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान। दैट मीन्स हमारी जो ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी अब वो डिवाइड हो चुकी थी एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ द पाकिस्तान। ओके,
So the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. So ये जो हमारा Constituent Assembly था, जो जिन्होंने ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, had 299 members. So कितने members ने मिलके ये सब कुछ किया था? 299 members. So the assembly adopted the constitution on 26 November 1949, but it came in effect on 26 January 1950. सो हमारी जो असेंबली थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन ये इफेक्ट पे कब आया? 26 जनवरी 1950 पे, जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है. ओके, यू ऑल हैव टू यू नो that all these dates are very important, so you all have to know all these dates. Okay, to make this day we celebrate January 26 as a Republic Day every year, और हम इस डे को एज अ रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? हमने क्यों एक्सेप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो कि इस असेंबली ने बनाया था मोर देन 6 डिकेड्स अगो? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव, जैसे कि मैंने अभी आपको रीजन बताया ही था. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन. It expresses a broad consensus of its time. Many countries of the world have had to write their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper no one actually follows. So the experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups had questioned some provisions of the constitution, but no large social groups or the political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. So this is an unusual achievement for any constitution. And the second reason for accepting the constitution is that the Constitution Assembly represented the people of the India, and there was no universal adult franchise at that time. So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the peoples of the India. नाउ अब मेन क्वेश्चन ये था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट क्यों करते हैं. देखिए, कई कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन कई कंट्री के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं. सो ये रीज़न ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही डिफरेंट था. You know, this constitution is very different from all the constitution. And you know that the constitution does not reflect the views of its members alone. वो खाली जितने भी हमारे जो मेंबर्स जो उन्होंने बनाया था जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो खाली उनके व्यू को देख के वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, वो हमारी पूरी कंट्री के व्यू को देख के वो कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ओके, उसमें कई सारे डिफरेंट बातें हैं जो कि अलग अलग ओपिनियन जैसे कि अलग अलग कंट्री के लोगों की होती है, उन सब को मिला के एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. और मेन रीज़न ये था कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ द इंडिया. ओके, उन्होंने ये हमें रिप्रेजेंट किया है एज वी आर द पीपल ऑफ इंडिया. सो देयर आर नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम. उस टाइम पर कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चोजन डायरेक्टली. सो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनको हम लोग ने डायरेक्टली चूज नहीं किया था बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. मीन्स ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये सब बाकी जैसे कि लोगों ने इसे चूज़ नहीं किया था डायरेक्टली. मीन्स जो लोग हैं इंडिया के उन्होंने डायरेक्टली इसे चूज़ नहीं किया था. इट वॉज elected mainly by the members of exciting provincial legislature that we mentioned above. Okay, and this ensures a fair geographical shares of the member from all the region of the country. So ये हमें इंश्योर करता है एक फेयर जियोग्राफिकल शेयर को
of the members of all the regions of the country. Now, the assembly was dominated by the Indian National Congress. Now, ये जो assembly थी वो किसने dominate की थी? Indian National Congress ने, and the party that led India's freedom struggle. And जो party थी उन्होंने क्या lead किया था? India's freedom struggle. But the Congress itself included a variety of political groups and opinions. लेकिन जो कांग्रेस थे उन्होंने अपने आप को एज अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस इंक्लूड कर लिया था. सो द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. सो असेंबली में कई सारे मेंबर्स ऐसे थे जो कि कांग्रेस से एग्रीड नहीं थे. सो इन द सोशल टर्म टू, the assembly represented members from different language groups and the caste classes, religion and occupation. So social terms में जो assembly है उन्होंने क्या represent किया था? members कैसे हैं? जिनके अलग अलग लैंग्वेज है, अलग ग्रुप्स हैं, अलग कास्ट हैं, अलग क्लासेस हैं, अलग रीजन्स हैं, अलग ऑक्यूपेशंस हैं. Even if the Constitution Assembly was elected by the Universal Adult Franchisee, चाहे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से ही चोजन हो, लेकिन वो इसी तरीके से चूज होती है. इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट. इनका ये जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स स्कैनिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. फाइनली जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क कर रही थी वो एक स्कैनिटी प्रोवाइड करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों मानते हैं. ओके, नाउ Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. So ये जो Constituent Assembly है वो कैसे वर्क करती है? in a systematic way, open and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. पहले कुछ basic principles decide किया जाते हैं जिसमें सब लोग agreed होते हैं. Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for the discussion. So ये जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी है जो कि जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चेयर किया था, उन्होंने एक पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया था फॉर द डिस्कशन. Several rounds of through discussion took place on the draft constitution clause by clause. Now more than 2000 amendments were considered. मतलब 2000 amendments से भी ज़्यादा considered किए गए थे. And the members deliberate for the 114 days spread over 3 years. नाउ जो मेंबर्स थे उन्होंने डिलाइब्रेट किया था फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर द 3 years एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रेजेंटेड किए गए थे, उसमें जितनी भी बातें बोली गई हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन सब को रिकॉर्ड किया गया है और उन्हें प्रिजर्व किया गया है. दैट मीन्स आप जितनी भी बातें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बताई है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी टॉक्स हैं उन सब को रिकॉर्ड किया गया है, उन सब को प्रिजर्व करके रखा गया है. ओके, नाउ दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. Now when printed, these debates are 12 bulky volumes and these debates provide the rationale behind every provision of the Constitution and these are used to interrupt the meaning of the Constitution. सो इसी तरीके से इन सब को रिकॉर्ड किया गया है, प्रिजर्व किया गया है और जितनी भी बातें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने या जितने भी मेंबर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, उन सारी बातों को रिकॉर्ड किया गया है, प्रिजर्व किया गया है और प्रिंटेड किया गया है. एंड दीज डिबेट्स आर एट 20 bulky volumes. Okay, I hope you all understand that what I wanted to know you all. Now you all have to look at these pictures.
that this is the picture of Dr. Rajendra Prasad at 1884 to 1963, born on Bihar President of Constituent Assembly, laureate known for his role in the Champaran Satyagraha, three times of the President of Congress, later the first President of India. Okay, Dr. Rajendra Prasad. You know that he is the first President of India. Now, after that, see this picture. This is the picture of Jaipal Singh, 1903 to 1970, born on Jharkhand, a sportsman and educationist, captain of the first national hockey team, founder president of Awadhisi Mahasabha, later founder of Jharkhand Party. He is Jaipal Singh. Okay. Now see this next one. He is H.C. Mukherjee, 1887 to 1956, born at Bengal, Vice Chairman of Constituent Assembly, reputed author and educationist, Congress leader, member of All India Christian Council and Bengal Legislative Assembly, later Governor of West Bengal. He is H.C. Mukherjee. Okay. Now after that, G. Durgabai Deshmukh. See this picture? He is born at 1909 and death 1981. Born in Andhra Pradesh, advocate and public activist for women's emancipation, founder of Andhra Miliya Sabha, Congress leader, later founder chairperson of Central Social Welfare Board. Okay, see this picture carefully. G. Durgabai Deshmukh. Okay. Now there is check your progress. Read the information about all the makers of Indian Constitution given in the side columns here. You don't need to memorize this information. Just give example for these to support the following statements. So जितने भी अभी हमने आपको मेकर्स के बारे में बताया, उन सब की इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है. ओके. अभी तो आपने एक छोटा मतलब इनके बारे में एक स्मॉल अमाउंट में पढ़ा है. आप इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. Now the assembly had many members who were not with the Congress. इन सब statements को देखकर the assembly represented members from different social groups. Members of the assembly believed in different ideologies. So this is check your progress if you want it, so you can check your progress. Okay. Now I hope you all understand this chapter very carefully. अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया. पहले तो हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा. आई होप आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम according to the any question, you know, any topic related to any topic of this chapter, you can ask with me, okay, in comment section. Now I hope you all understand this chapter very carefully. मैंने जितनी भी आपको पिक्चर्स बताई हैं, if you wanted, so आप इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो कलेक्ट करिए, इनके बारे में स्टडी करिए. ओके. और जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल डिस्कस इन पार्ट 3. Now we are done with this topic. Okay. Now this is part 2. Part 2 totally completed, and in part 3 we will discuss about the guiding values of the Indian Constitution. So the end. Thank you for watching my video, and if you all have any doubts regarding any topic, so tell me in comment section without any hesitation. And if you all like my video, so please like, share, subscribe and press the bell icon. Okay, bye bye and take care.